Good morning, students. Let's start with another topic after monohybrid cross, that is laws of inheritance. So before starting the laws, there are two type of cross. Okay, there are two type of cross that is also observed by the Mendel, that is back cross and test cross. So what is back cross? Crossing of the F1 जो generation आई है back with any of the parent. ठीक है, for example, just see here, this is the F1 generation. Okay, F1 generation है this one C. Okay, this is F1 generation. Clear? So if with any of the parents, ठीक है, that have to be cross. Clear? That have to be cross with any of the parent, whether it is a dominant or recessive, जो भी आया है, that is known as the back cross and test cross. Crossing of F1 hybrid, जो F1 hybrid आया है, suppose ये आया है W and small w, ठीक है, that is cross with its recessive parent. Just say these are the recessive parents, homozygous recessive W W small. तो इसको जो है जो F1 hybrid आया है, F1 W and W mix होकर, ओके, homozygous and जो heterozygous है वो mix होकर आया है, that is cross with the this WW. Okay, तो ये जो है that form, if we see the test cross, ठीक है, तो it is used to find out the unknown genotype. तो if we cross it, तो W capital W small w capital W small w, इसको करेंगे small w small w small w small w. तो half of the flowers are violet. देखिए W capital आया हुआ है, तो suppose it is for the W violet and small w for the white. So see a violet, and this is half of the flower, 50% जो है, that is you can say the white. So the unknown flower हम find out कर सकते हैं. The unknown flower is heterozygous. Naturally heterozygous है, तभी तो 50-50% आया है. Now if we see here in this case, just see WW. Okay, दैट इज अ डोमिनेंट वन, और एनी ऑफ द, आप इसको जो है रिसेसिव के साथ कर दो. पहले हमने F1 हाइब्रिड को किया था, अब जो है हम एनी ऑफ द WW जो है उसको स्मॉल w से कर देते हैं. तो सी all the flowers are violet. Result and interpretation, unknown flower is homozygous dominant. ठीक है, जो फ्लावर है नेचुरली डोमिनेंट का करेक्टर आया हो, तो दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट. क्लियर? दिस इज अबाउट द टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. क्रॉसिंग F1 में क्या करते हैं, बैक क्रॉस में क्या करते हैं, F1 जो हाइब्रिड आता है उसको एनी ऑफ द पेरेंट, वेदर इट इज अ डोमिनेंट वेदर इट इज अ रिसेसिव, किसी के साथ भी जो है क्रॉस करा देते हैं. बट इन टेस्ट क्रॉस what happened, F1 hybrid जो आया, see this is F1 hybrid W small w, तो इसको जो है किसके साथ हम कराएंगे क्रॉस, that is with the gametes of the recessive. Okay, it is used to find out the unknown genotype. कि अगर suppose हमें दे दिए ये flowers, तो अननोन फ्लावर कौन सा है, तो वी कैन से कि जो अननोन फ्लावर ये है, एक तो रिसेसिव है, क्योंकि रिसेसिव के देखो दोनों रिसेसिव आए हैं, तभी तो वो एक्सप्रेस कर रहा है करेक्टर. बट जो अननोन फ्लावर है वो क्या है, दैट इज हेट्रोजाइगस. ठीक है, डोमिनेंट फिनोटाइप, जीनोटाइप अननोन है इसकी, तो अननोन फ्लावर हम बता सकते हैं, दैट इज heterozygous. Clear? So this is about the back cross. Mendel conducted test cross to determine the F2 type. देखिए ये F1 तो आ गई थी, दैट इज WW. F2 टाइप को टेस्ट क्रॉस कराया, किससे, रिसेसिव से. सी ओके, और इसको भी डोमिनेंट वाले को भी, ठीक है, इससे कराया F1 से. ठीक है, जो सॉरी ऑलरेडी होमोजाइगस रिसेसिव है, तो उससे ये रिजल्ट आया. क्लियर? मतलब एक अननोन फ्लावर है, आप कह सकते हो अननोन फ्लावर है, और हमें पता करना है कि वेदर दे आर हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, क्या है उसकी जीनोटाइप क्या है, तो हम दोनों से क्रॉस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले WW से क्रॉस करेंगे इधर, एक तो ये रिसेसिव को से कराएंगे, और इधर भी जो है जो F1 हाइब्रिड आया है, टेस्ट क्रॉस कराएंगे उसका विद द रिसेसिव, देन वी कैन फाइंड आउट द जीनोटाइप. So there are two laws which are related with the Mendel's principles, or we can say the laws of inheritance related with the monohybrid cross. So first is law of dominance. Very simple, नाम से पता लग रहा है, characters are controlled by discrete. Mendel ने कहा था ये कि that all the characters are controlled by a discrete unit that is known as the factors. उसके बाद इसको जो है जीन कहा गया, तो factors occurs in pair T and small t, है ना, that always occur in pair. In a dissimilar pair of factor, one member of the pair is dominant.
कैपिटल टी सपोज हम लेते तो दैट इज डोमिनेंट, द अदर इज रिसेसिव। तो डोमिनेंट वन करेक्टर इज सप्रेस्ड, ओके, एंड सप्रेस सॉरी एक्सप्रेस्ड इज करेक्टर, और जो रिसेसिव है दैट गेट सप्रेस। तो हमने देखा था कैपिटल टी को व्हेन वी क्रॉस विद द स्मॉल टी तो क्या हुआ, गैमेट बने तो टी कैपिटल टी स्मॉल टी आया। तो F1 जनरेशन जो आई दैट इज ऑल आर टॉल, है ना। तो उसमें ड्वार्फ तो नहीं शो हुआ था ना F1 जनरेशन में। इट्स मींस कि टी जो है दैट इज डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव। तो दिस इज द वन ऑफ द लॉ ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मैंने होता है सेपरेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो एक कैपिटल टी इसमें निकल के आया, एक स्मॉल टी इसमें से निकल के आया। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एलीन, द फैक्टर्स ऑफ ए करेक्टर पेयर present in the pair segregate from each other such that a gamete receive only one of the two factor। ठीक है, मतलब जो F1 गैमेट में जो है कैपिटल टी में से एक ही टी आया और स्मॉल टी में से एक ही टी आया। ठीक है, तो होमोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूस सिमिलर गैमेट्स, हेटेरोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमेट एंड ईच हैविंग वन एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जो गैमेट है वो सेपरेट होकर एक एक गैमेट निकल के आ रहा है, मिक्सिंग नहीं हो रही है उनकी। अगर हम होमोजाइगस में देखें टीटी और स्मॉल टी है, उसमें से एक एक गैमेट निकल के आ रहा है। हेटेरोजाइगस में से नेचुरली कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तो एक कैपिटल टी अलग निकल आएगा, टू काइंड ऑफ गैमेट होंगे, ईच हैविंग वन एलील। ईच हैविंग वन एलील मतलब एक कैपिटल टी जो है वो दैट टॉल को शो कर रहा है और स्मॉल टी जो है दैट शोज द ड्वार्फ। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ फर्दर रिसर्च हुई मेंडल के बाद, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर दिया। उसके बाद जो है फर्दर कुछ और रिसर्च हुई, ठीक है, विच इज टोटली कह सकते हैं आप देयर इज अ डिफरेंट लॉज विच आर रिलेटेड विद इट, दैट इज नोन एज अ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्योंकि मेंडल से अलग था इनका व्यू। ठीक है, तो लेट्स सी नॉन मेंडल इनहेरिटेंस में कौन कौन से जो है टॉपिक्स आते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पीलियोट्रॉपी। So first we start with the incomplete dominance. See, it is the inheritance in which the offspring show characteristic intermediate with two extreme parental character। अब आप देखिए कैपिटल टी था, स्मॉल टी था। तो जब F1 जनरेशन आई तो उसमें सारे टॉल आए। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि टॉल और ड्वार्फ का मिक्सचर बनके कुछ और आ जाता। ठीक है, तो क्योंकि दैट इज अ टॉल इज अ प्योर ब्रीडिंग वेराइटी, उधर से ड्वार्फ इज द प्योर ब्रीडिंग वेराइटी। सेपरेट हुए, गैमेट मिक्स हुए, तब भी जो है ब्लेंडिंग नहीं हुई उनकी, एंड डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट चला। लेकिन इस केस में क्या है, सपोज एक फ्लावर है जैसे स्नैप ड्रैगन है, डॉग फ्लावर, और उसके बाद जो मिराबीज जलापा, ये जो है इन दोनों फ्लावर्स के अंदर रिसर्च की गई। तो इसमें क्या शो किया गया, जस्सी रेड कलर का फ्लावर दे हैव टेकन, दैट इज अ डोमिनेंट वन हम कह सकते हैं, दिस इज अ रिसेसिव वन। बट इन F1 गैमेट देखो कैसे चेंज हुआ, R प्लस R, है ना। तो क्या आना चाहिए था, अगर हम अकॉर्डिंग टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखें तो R इज रेड आना चाहिए था, ऑल आर रेड। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दे मिक्सिंग हुई एंड दे प्रोड्यूस अ पिंक फ्लावर। रेड एंड व्हाइट, रेड जो है पिगमेंट है इसके पास, व्हाइट के पास पिगमेंट नहीं है, और आगे जब दोनों की ब्लेंडिंग हो गई एंड दे प्रोड्यूस द पिंक फ्लावर। एंड जो है गैमेट बने उसकी सेल्फिंग की, आर कैपिटल स्मॉल आर। तो इसमें जो फ्लावर आए दैट इज 1:2:1। बस इसमें चेंज क्या है, फिनोटिपिक रेशो क्या आई, 1 रेड 2 पिंक 1 व्हाइट। एंड जीनोटिपिक भी जो है सेम आई, उसमें क्या था 1:2:1 जीनोटिपिक था और फिनोटिपिक 3:1 था। लेकिन इसमें क्या हुआ आप देखो, अगर हम फिनोटाइप जीनोटाइप भी देखें तो 1 कैपिटल आर 2 कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो दिस इज नोन एज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं कर रहा है। अगर रेड डोमिनेट करता होता तो आगे रेड ही तो आते। तो दोनों की जो है मींस इट इज नॉट अ प्योर ब्रीडिंग वेराइटी, मतलब टॉल जो है कैपिटल टी दोनों अपने डोमिनेंट करेक्टर एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन इसमें आर एंड आर जो है सिंगल होकर आया है, तो हाफ पिगमेंट इसमें आया है, एंड हाफ पिगमेंट आया है तो दोनों की ब्लेंडिंग हो गई। हाफ पिगमेंट इसका है, व्हाइट का इसका, एंड दे प्रोड्यूस द पिंक फ्लावर। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट आर वाज नॉट कंप्लीटली
incomplete dominant over the small r, and pea plant also show incomplete dominance in other traits. कई traits ऐसे हैं pea plants में जहां पर जो है incomplete dominance ये show करता है. तो these are the, ये आपको example आते हैं कि incomplete dominance shows in which flowers. So snapdragon में जो है ये experiment हुआ, see the flowers, ठीक है, and Mirabilis jalapa में. These are the two plants. Clear? So this is incomplete dominance. Now second is codominance, that we will do next time. If you are having any doubt, you can ask. Thank you.